in our next set, that is, we have already completed one chapter each from one book, and then we have done one poem, that is a photograph. Now we are moving towards our writing sections. In class 11th, what is different from class 10th is you have one new concept in your reading skills and a new concepts, that will be two new concepts in your writing skills. Like letter आपको आता है, मुझे पता है. Letters आपको मतलब you know what is letter, I mean to say. But we have some new concepts like advertisements, then poster making, then of course you have some speech, debate. ये हम लोगों ने अभी तक 10th में as a written part नहीं किया है. So these are the new added syllabus in your class 11th. Note making will be part of your what we call as reading section. Note making हमारा reading section का part है. And poster, advertisements and जो आपका speech and debate है, that is part of your writing skills. In the grammar section, you don't have anything specified. The only thing what we have done in our 10th standard, उसी को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं, that is हमारा grammar. तो ग्रामर के अंदर you will not be having anything specifiedly, कुछ ऐड नहीं होने वाला है. The thing which is added is in your writing skills and in your reading skills. And जो reading skill के अंदर हमारा add हुआ है, that is note making, that we would be doing later on. Today I'll be starting with poster making. Now you might be thinking कि poster making का मतलब क्या, the one which हम लोग देखते हैं, the beautiful pictures and all. So no, in our class 11 we are not going to make it in that way, but yes, it is somewhere related to the same. वही चीज है जो हमने relate किया है, जो हमने वहां किया है, उसी चीज को हम यहाँ करेंगे, but we would be doing it on a very scratch base. तो सबसे पहली चीज जो हमारे साथ में आएगा, like in class 10th we used to have the formats. Similarly, you would be having some formats for all these. So let us first discuss what are the formats. What is the format for poster making? Poster making is nothing but giving any information about any event which is going to happen. Any event that is going to happen. ये मतलब कि मेन पर्पस हो सकता है. इट इज अबाउट सोशल अवेयरनेस. मीन्स एनी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, लाइक गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिक रूल्स. तो एनी सोशल अवेयरनेस और इवन इनवाइटिंग द पब्लिक फॉर ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन कैंप्स, आई डोनेशन कैंप्स. तो जब हम ये कैंप्स वगैरह करते हैं तो दिस इज एक्चुअली अ सोशल अवेयरनेस, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू व्हाट वी कॉल एज पैसा खर्च करके एडवर्टाइज करना मुश्किल होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम द पोस्टर्स आर मेड एंड दे आर पेस्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस. तो poster making यानी कि either it would be creating the social issues about a social awareness about the issues, or it may be about any advertisements, or it may be about any public invitation जिसमें हम चाहते हैं public participate करे, like blood donation camp, eye donation camp. उसमें हम लोग जो है we prepare the posters. तो the first aim of poster making is to create awareness, invite the general public
for some cause. I repeat, for some cause. यानी कि ब्लड डोनेशन हो गया या फिर आपके ऑर्गन डोनेशंस हो गए, वो इट कैन बी अबाउट ऑल दीज. ठीक है. तो सेकेंड इज व्हाट शुड बी द फॉर्मेट. तो रिमेंबर क्लास 11 हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे इन आवर राइटिंग स्किल्स. द फर्स्ट वन इज द पोस्टर एंड देन सेकेंड इज आपका, सॉरी, पोस्टर एक होगा, 4 क्वेश्चन होंगे. पोस्टर होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, लेटर होगा एंड स्पीच और डिबेट होगा. तो पोस्टर as well as advertisements जो है, that has to be put in box. ये हमारा फॉर्मेट का एक हिस्सा है. दिस इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट. यानी कि बिना बॉक्स के आपको आधे मार्क्स आपके कट जाएंगे. द मार्किंग स्कीम इज डिफरेंट. दैट इज आपके जैसे 5 मार्क्स का तो नहीं आता. अगर 5 का आएगा तो 1 मार्क्स फॉर बॉक्स, 1 मार्क्स फॉर ऑर्गेनाइज, मतलब कि इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके आता है. सो बॉक्स इज अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मेट. Here we are not going to color it, we are not going to make, बहुत बड़ी pictures नहीं बनाएंगे. तो we would be making some visuals. And I always suggest all the students to make stick drawing. मतलब, see, in your paper you don't get time to make a complete picture. अगर पिक्चर थोड़ी बहुत बना सकते हो बना लो, लेकिन जिसमें हम बना सकते हैं, एवरीवन इज नॉट अ बॉर्न पेंटर और अ ड्राइंग मास्टर. सो डेफिनेटली अगर हमें ड्राइंग नहीं आती है या फिर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बैठकर अगर हम लोग यही चीज लगाएंगे तो देन वी वुड नॉट बी हैविंग टाइम टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस. सो वी कैन गो फॉर अ स्टिक ड्राइंग. जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे, जहां पॉसिबल है, लाइक हम योगा वाले में हम स्टिक ड्राइंग बना लेते हैं. एंड देयर आर सम अदर posters also. Then जब हम posters को शुरू करते हैं तो we have to give a title or something which is catchy. अब आपको लिखा हुआ भाई योगा पे बनाओ, तो आपको कुछ कैची लिखना है. तो you can use a slogan, you can use any phrase, you can use any jingle. आप कुछ भी यूज कर सकते हो. जिंगल का मतलब है जैसे वो गाने बनाते हैं ना हम, 2-3 गानों को जोड़कर, तो ऐसा कुछ एक आध लाइन का बना लो. दोज हु आर वेरी क्रिएटिव दे कैन मेक दैट. स्लोगन्स बना लो. स्लोगन्स नहीं आते, कोई भी हिंदी में आता है उसको थोड़ा सा, कोई भी आता है उसमें वर्ड्स को आगे पीछे करके चेंज करके बना लो. कोई फ्रेज अगर आपको उस वक्त में याद आ रहा है तो यू कैन यूज दैट. देन यू कैन यूज and you should use in fact letters of different size. Means आपके पास जब आप बनाओगे तो नॉर्मली हम कहते हैं एक ही जैसे लिखना है. आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो. Means you can, it should be presentable. And presentation का मतलब, now we cannot use a drawing, तो at least we can use a different fonts. हम different sizes जो है वो use कर सकते हैं. And appropriate हमें spacing रखना पड़ता है. अब जो हमारा main content है उसमें हम use करेंगे या फिर हम उसमें क्या क्या देंगे. First is the subject or theme. जरूरी नहीं है कि आप थीम को ऊपर लिखो. समटाइम्स यू कैन यूज सम जिंगल एंड देन प्रेजेंट. देन उसके बाद आपको जो है सेकेंड प्रेजेंट करना, उससे रिलेटेड डिटेल्स. नाउ व्हाट विल बी द डिटेल्स? दिस डिपेंड्स ऑन द पोस्टर. अब मैं आपको 2 तरीके का पोस्टर बताती हूँ. वन इज वेयर आपको जो है सेव वाटर लिखना है. ठीक है. द वन इज वेयर यू हैव टू टेल अबाउट सेविंग द वाटर.
आपको पानी बचाने के कैंपेन को बताना है। तो अब पानी बचाने के कैंपेन में आप क्या बता सकते हो? व्हाट कैन यू टेल? यू कैन यूज डूज एंड डोंट्स। यू कैन यूज डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। जैसे वी कैन यूज पाइप की जगह वी कैन यूज अ मग फॉर क्लीनिंग द वाटर। देन व्हाट शुड वी नॉट डू? तो ये आप लिख सकते हो जब आपके जो थीम है दैट इज रिलेटिंग टू समथिंग विच सेज डूज एंड डोंट्स, लाइक ट्रैफिक रूल्स को करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, इट्स नॉट मतलब कि ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स, दिल्ली पुलिस इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रैफिक वीक, ड्राफ्ट अ पोस्टर। तो अब आपको इसके अंदर इससे रिलेटेड आप डूज एंड डोंट्स बता सकते हो, लाइक वियर द सीट बेल्ट, वियर द सीट बेल्ट। और डोंट में कह सकते हो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ऑलवेज वियर हेलमेट, क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। और डोंट में आप लिख सकते हो डू नॉट यूज सेल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, डू नॉट ड्राइव इन पिलियंस। तो डूज एंड डोंट्स आपके हो गए, राइट? तो आप उसके अंदर डूज एंड डोंट्स दे सकते हो। देन अगेन यू कैन गिव अ गुड कोटेशन और स्लोगन टू एंड इट। देन अगर हमारा जो है, ये तो हमारा था डिटेल, अगर हमारा पानी बचाओ आंदोलन है, ट्रैफिक रूल्स वाला है। लेकिन अगर मान लो आपके पेपर में आ गया क्वेश्चन दैट योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप, आपका जो स्कूल है वो ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है। अब आप सोचोगे कि ब्लड डोनेशन कैंप में बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि ब्लड इज डोनेटेड ओनली आफ्टर 18 years। सो यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट अ पोस्टर, और उसके अंदर आप क्या लिखोगे? मतलब अगर आपका ब्लड डोनेशन कैंप आ गया, देन यू कैन राइट द प्लेस, यानी कि इवेंट कहाँ होने वाला है, द डिस्क्रिप्शंस लाइक डेट, वेन्यू, टाइम, उससे रिलेटेड आप बता सकते। एंड देन एनीथिंग रिलेटेड लाइक ब्लड डोनेशन डज नॉट कॉज एनी वीकनेस। एंड देन ऑफ कोर्स वन, तो दो तरीके के पोस्टर्स हो जाते हैं, वन वेयर यू कैन जस्ट यूज द डूज एंड डोंट्स, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जैसे मैंने ये बना दिया है आप ऐसा बनाओ, आप अलग तरीके से भी बना सकते हो। एंड अनदर वन इज व्हेन देयर इज एनी इवेंट, ब्लड डोनेशन कैंप है, आपके स्कूल में एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन है, मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्टर्स, यू हैव टू ड्राफ्ट अ पोस्टर फॉर साइंस एग्जीबिशन, इंग्लिश लिटरेचर वीक है। तो देन अगर ऐसा कुछ होता है, एनी इवेंट इज देयर, then you can give the details like when it is there, where it is there, at what time it is there. So that is the details. Third is आपने सब्जेक्ट दे दिया, डिटेल्स दे दिया, आपने विजुअल ड्रॉ कर दिया कंटेंट के अंदर, एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ the issuing authority. This is again a part of your format. यानी कि अब आपको मैंने कहा कि द दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रैफिक वीक, द दिल्ली पुलिस इज ऑर्गेनाइजिंग द ट्रैफिक वीक। तो इसका मतलब है कि जो दिल्ली पुलिस है वो इश्यू कर रही है इस पोस्टर को। तो यहां पर हम नीचे जो है इश्यूड बाय दिल्ली पुलिस करके लिखते हैं, मतलब जो भी इश्यू करता है तो उनका नाम आना जरूरी होता है। सो दिस इज हाउ वी राइट, यानी कि हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो यू कैन क्रिएट इट, आप इसके अंदर जो है
सुंदर बना सकते हो by using different fonts, phrases, persuasive language, मतलब लैंग्वेज एकदम, और आपको लंबा चौड़ा, लंबी चौड़े शब्द नहीं लिखने हैं. You use phrases, मतलब द दिल्ली पुलिस इज, मतलब ऐसा आपको नहीं लिखना. दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइजेस. You need to use such catchy persuasive language. जैसे फॉर एग्जाम्पल डूज एंड डोंट्स लिखा है हमारा, ठीक है. तो डूज एंड डोंट्स के अंदर हमारा है डू नॉट वेस्ट वाटर, तो हमने डूज डाल दिया है और डोंट्स भी ऊपर डाल दिया है, तो हमें नीचे सिर्फ वो पॉइंट्स लिखते जाने हैं, यानी कि अपने पॉइंट को हमने शॉर्ट कर देना है. यू डोंट नीड टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस. And the word limit for the posters as well as for the advertisements is 50. आपका जो word limit है वो 50 words में जाएगा. And of course you need to put it in a box. So this is what we call as the format of poster making. यानी कि when we are creating awareness, when we are इनवाइटिंग द जनरल पब्लिक फॉर सम कॉज, जैसे मैंने अभी नीचे बताया आपको कि ब्लड डोनेशन कैंप है, तो दिस इज अ मेन पर्पस, हमारा जो एम होता है. सो वी मेक अ बॉक्स, वी यूज ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग. नाउ ब्यूटिफुल हेयर मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स. इट शुड बी एकदम खुला खुला होना चाहिए. यू शुड यूज अ स्पेस इन द प्रॉपर मैनर. आई रिपीट, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा इतना छोटा सा पोस्टर बना के चला जाता है. यू कैन यूज अ कंप्लीट, आप एक पेज को, जो आपका जो एग्जामिनेशन पेज होता है उसमें हम पूरा ले सकते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाकर. तो यू कैन यूज द अप्रोप्रिएट स्पेस. इन सम schools they even allow to make the clouds and all in between. उसको जो है instead of putting it in a point, आप उसको cloud अगर में डाल के बना सकते हो, but no colors should be used. So the main subject, the main content, then आपका subject यानी कि theme, the details regarding that, the visuals regarding that, the name of the issuing authority, and we use phrases. Now I'm doing one example to further explain you. Only one example I'll be doing today. So the question says draft a poster in about 50 words for you on behalf of the school library, and it is on the theme value of books and reading habits. So this will be the one. So first of all, let us start with that. I've used the bold letters in the beginning.
Since the question says you need to only write about the value of books and reading habits, so we are writing all the slogans or the things only based on this. On the top side, I have written books a real treasure. You can use different kinds of slogans. आपको जैसा सही लगता है आप उसको लिख सकते हो. Then second is आप लिख मतलब कि ये मैंने पिक्चर बना दिया है. This you have to make. ये तो आपका ऐसा ही जाएगा. ये तो पिक्चर बुक की तो बुक ही जाएगी. So this is book. Then I have written because we have to. ये question कह रहा है you need to write the value of book and reading habits. इसलिए हमने one book is equal to 10,000 quotes. ये मैंने ऐसे ही बना दिया. Make reading a habit when you are gloomy. Brighten yourself with a book. This is a quotation. And then I have also written it. आप देख सकते हो एक को मैंने सीधा लिखा तो एक को मैंने टेढ़ा लिखा है. Issued by school library because it is already written on behalf of your school library. The name of the school is not given, so I had just invented MN school करके. So this is what we call as a poster. So this is one of the very common question that comes in the exams. मतलब reading habit पर books पर ऐसे questions आपके कई बार आते हैं. So this is one. In our next class, we would be definitely doing more questions on different, categories so that you are well aware about what is a poster making and how does it look like.